Good afternoon, guys. So in the previous lecture, we have completed the terminology of the this genetics and law of segregation. Today, we'll discuss the law of independent assortment. Independent assortment, and this law is explained on the basis of dihybrid cross. We can explain this law on the basis of a dihybrid cross. Dihybrid cross कल ही हमने explain किया था, a cross in which we study the transmission of two genes of two characters simultaneously. उसमें हम दो characters simultaneously उनका transmission study कर लेते हैं. For example, यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे dihybrid cross. हम जो characters लेंगे वो हम देखेंगे क्या है, वो हमने कल भी देखा था, लेकिन आज हम इसी बेस पे ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करेंगे. जो कैरेक्टर्स लेंगे उसमें हम पहला लेंगे सीड की शेप. दिस इज द सीड शेप. फर्स्ट कैरेक्टर दैट वी आर टेकिंग फॉर डिस्कशन. सेकंड इज सीड का कलर. सीड कलर. These are the two characters. So we will study the transmission of two characters simultaneously. That is why we call this cross as a dihybrid cross. You know, there are two contrasting features of seed shape. Either the seed can be completely round like this, or it can be wrinkled, having the irregular surfaces. ठीक है. Next one, seed color. It can be having two. It is having two contrasting features. First is yellow in color, and second is green in color. ठीक है. And remember this point. It is dominant on roundness is dominant or dominant on wrinkledness, and yellowness is dominant on greenness. ठीक है. We will take this very cross. So let us first take parentus. ठीक है. We'll take parentus. Parentus we will take a round and yellow seeded plant with, we will cross this with wrinkled and with a green seeded plant. ठीक है. Let us write the genotypes of these plants. We have wrote the phenotype. Now write the genotype. This dominant is always designated by capital letter, capital R, and capital Y. Capital Y will designate the yellow color. Similarly, small r for this, and small y for green. So you know, when the gametes will be formed, at the time of gametes, which type of division takes place? Meiosis. At the time of meiosis, this is one homologous pair, this is second homologous pair. Similarly, this is one homologous pair, this is second homologous pair. So at the time of gametogenesis, homologous pair is separate and pass on to the gamete. So from this homologous pair, one homologous will go into the gamete. इसमें से भी एक आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर गैमीट बनेगा. दूसरा भी बनेगा लेकिन वो सिमिलर होगा. इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह से एक गैमीट बनेगा. तो जब इन सपोज ये पोलन ग्रेन है, ये ओव्यूल है, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये हमको मिल गई पहली जनरेशन, F1 जनरेशन. ठीक है. तो बता इसका क्या होगा? ये सारे होंगे राउंड एंड येलो. क्यों होंगे राउंड एंड येलो? वी आर हैविंग this wrinkledness and green alleles also there, but because of dominant alleles of round and dominant allele of yellow are present there, so the first generation will be round and yellow. But it is hybrid type, it is not pure type. In the parentus we have took the homozygous condition or pure condition. Now after that what we do the selfing to get the F2 generation. I hope कि आपने ये लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड छोटा है तो मैं नहीं लिख सकता. अब हम करेंगे सेल्फिंग. सेल्फिंग में हम दो ऐसे इंडिविजुअल, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये एक इंडिविजुअल कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल. एक आप मेल ले लेंगे, ठीक है, दूसरा आप फीमेल ले लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर फिर से गैमीट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये सेल्फिंग है. सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग टू इंडिविजुअल्स हैविंग द सेम जीनोटाइप. तो कितने गैमीट्स बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये एक कॉम्बिनेशन है. कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये दूसरी कॉम्बिनेशन है. कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल. ये एक है, दो है, तीन है, चार है. ठीक है. इसी तरह यहाँ पर भी बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, दो है. स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये दो है.
ठीक है। तो यहाँ ये इतने सारे गैमेट्स कैसे बन गए, इसके लिए एक रूल आता है, उसको टू रेज़ पावर n रूल कहते हैं। n का नंबर मतलब होता है हेटेरोज़ाइगोसिटी। हेटेरोज़ाइगोसिटी यहाँ पर 2 है, टू रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स 4 गैमेट्स एक इंडिविजुअल में बनेंगे। अब हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर, उसमें हम रिजल्ट देखेंगे क्या आएंगे। ठीक है, ये है पनेट स्क्वायर जिसमें हम देखेंगे कि जब ये पोलन ग्रेन्स एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे तो किस तरह से क्या रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन्स है और ये एग्स हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैप स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो फिर हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आ गया इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतने सारे इंडिविजुअल्स हमको मिल गए। हमने पैरेंट्स क्या लिए थे, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो रेशियो क्या आएगा यहाँ पर, बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर जिसमें एक डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट है तो वो उसका फिनोटाइप आएगा। यहाँ पर डोमिनेंट जो राउंड एंड येलो के, ये भी राउंड एंड येलो, इसको हम क्रॉस से दिखाएंगे, राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो, ये भी ये भी ये भी ये भी और कौन सा आएगा, ये भी। ठीक है, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 आपको कितने आ गए राउंड। उसके बाद देखेंगे ये वाला कितना आएगा, राउंड एंड ग्रीन। तो ये एक राउंड एंड ग्रीन है, ये दूसरा राउंड एंड ग्रीन है, ये तीसरा राउंड एंड ग्रीन है, तो 3 राउंड एंड ग्रीन आ गए। ठीक है, तो फिर देखेंगे इस तरह के कितने आए, रिंकल्ड एंड येलो, इसको हम कैसे, रिंकल्ड एंड येलो 1, रिंकल्ड एंड येलो 2, रिंकल्ड एंड येलो 3, तो ये भी 3 आ गए। उसके बाद है रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने आ गए, वो एक ही है, इसको हम सर्कल से दिखाएंगे, तो इस इज टू 1। तो ये क्या रेशो आ गया, फिनोटिपिक रेशो, 9:3:3:3:1। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, यहां पर मैं थोड़ा सा लिखूंगा सबसे पहले, तो कितने आ गए, येलो सॉरी राउंड येलो, बताओ कितने आ गए, 9। ठीक है, उसके बाद रिंकल्ड येलो जो न्यू कॉम्बिनेशन है 3 आ गए इस तरह से, और ग्रीन राउंड या राउंड ग्रीन कितने आ गए, 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितने आ गए, वो 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम एनालाइज करेंगे हम यहाँ पर, ये मैं मिटा लेता हूं, अब आपको समझाता हूं मैं यहाँ पर किस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर आप देखोगे येलो कितने हैं, राउंड येलो हम देखेंगे सबसे पहले कितने हैं, 9 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल राउंड कितने हैं, एक ही कैरेक्टर को ले लेंगे हम, एक एक कैरेक्टर पहले हम अलग अलग ले लेंगे, राउंड को अलग लेंगे, फिर सीड शेप को अलग लेंगे और सीड कलर को अलग लेंगे। तो कितने हैं राउंड और राउंड, 9 और 3 12 है। ठीक है, तो फिर ले लेंगे टोटल रिंकल्ड कितने हैं, टोटल रिंकल्ड कितने हैं, टोटल रिंकल्ड 1 और 2। ठीक है, ये एक रिंकल्ड है, ये दूसरा रिंकल्ड है, 3 और 1 और 4 कितना हो गया, 4।
ठीक है। तो अगर हम देखो, अगर हम ये ए कैरेक्टर है ना, सीड शेप, सॉरी हाँ सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, ये हमने ए कैरेक्टर लिया। तो राउंड हमको मिल गए यहाँ पर 12 और रिंकल्ड हमको मिल गए कितने, 4। तो अगर हम इसका रेशो देखेंगे कि राउंड और रिंकल्ड कितने निकल गए हमें, अगर हम इसका रेशो देखेंगे, रेशो अगर हम देखेंगे बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड, इसका रेशो हम देखेंगे कितना रेशो है, 12:4। अगर हम इसको काटेंगे, 4 का है 4 दिया वो 12, क्या हो 3:1 आ गया, 3:1। ठीक है, 3:1 है। ये कौन सा ये कहां पर 3:1 रेशो देखा था आपने, फेनोटाइपिक रेशो मानो हाइब्रिड क्लास में, जब हमने ए कैरेक्टर लिया था। ठीक है, तो वहां पर जो फेनोटाइपिक रेशो आया था 3:1। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा भी ले लेंगे। अब हम लेंगे दूसरे कैरेक्टर का, ये सीड की शेप के साथ। अब हम लेंगे दूसरा कैरेक्टर सीड, इसी रेशो में से करेंगे एनालाइज सीड के कलर का। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि टोटल येलो कितने हैं, टोटल येलो बताओ मुझे, टोटल येलो कितने हैं इसमें से, 3 और 9 कितने हो गए, 12। उसके बाद टोटल ग्रीन कितने हैं, देखो वहां से ग्रीन, ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, 3 और कितना हो गया 4। तो इसका रेशो कितना आ गया, 12:4। 4 का 4 दिया 12, तो इसका भी कितना आ गया 3:1। दैट मीन्स जो ए कैरेक्टर है वो बिल्कुल अपना रेशो मानो हाइब्रिड क्लास के जैसा दिखा रहा है। दैट मीन्स इस कैरेक्टर के जीन्स इस कैरेक्टर के जीन्स को इंटरफियर नहीं करते हैं, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते तो इनका रेशो बराबर नहीं आता, जैसे हम मानो हाइब्रिड क्लास में देखते हैं। अगर यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस होता था, इनका इंटरफेरेंस इस पे था या इनका इंटरफेरेंस इसमें था, नहीं, ना तो इनका इंटरफेरेंस इन पे कोई इन्फ्लुएंस होता है, ना तो इनका इन पे कोई इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए इसका जब हमने मानो हाइब्रिड क्लास का देखा, जब हमने अलग करके इस कैरेक्टर को इसी रेशियो में से देखा, वहां 3:1 आ गया। जब हमने इसको देखा वहां भी 3:1 आ गया। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है और ये भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, ये एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो वी कैन से दैट द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहां पर मैं अगर मैं लिखूंगा इसका inheritance of two characters is independent of each other। ना सीड शेप इंटरफेयर करती है सीड कलर के साथ, ना सीड कलर इंटरफेयर करता है सीड शेप के साथ। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।